पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था यहाँ तक का कि हमारा याद है का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी करने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस विद एग्जांपल। एनाटॉमिकल एविडेंस के ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से यहाँ पर फॉर्म करके रखा हुआ है। एनाटॉमिकल एविडेंस आर द सिमिलैरिटीज in the structure of bones and bony joints of animals that provide proof of evolution। यहाँ पर आपको ये फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखना है, फिर इसके नीचे आपको लिखना है द ह्यूमन हैंड, 4 leg of cat, 4 limbs of bat and flipper of whale appear different superficially or morphologically। अब ये क्वेश्चन को देखकर मुझे आपको एक बात बताना है कि ये जो 4 चीज मैंने यहाँ पर बताया आपको, अगर ये एग्जाम में आते हैं तो आपको इसके नीचे का लेबलिंग लिखने आना चाहिए। ऑलराइट, जो है ये ह्यूमन हैंड का, ये है 4 leg of ox, ये है पेटागियम ऑफ बैट और फ्लिपर ऑफ वेल। ओके, ये स्पेलिंग्स याद रहना चाहिए आपको। Also the function of this structure is different in different animals. Also the function of this structure is different in superficially or morphologically. However, there is similarity in the structure of the bones and bony joints in the organs of these animals. These similarities indicate that the animals evolved from a common ancestors. ऑलराइट, इतना आपने 5 पॉइंट्स लिख देना है 3 मार्क्स के लिए और आपको डेफिनेटली मिल जाएगी कितने मार्क्स आपके 3 मार्क्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वेयर इज द पेपर? यस, हियर वी हैव गॉट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू, व्हाई? यस और नो? व्हाट विल यू डू, व्हाई? चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग। वेयर इज द आंसर फॉर दिस? The hazards of tobacco chewing will be explained to this child. Yes or no? जो problems हो सकती है गुटखा खाने से, इसको क्या किया जाएगा, बच्चे को explain किया जाएगा। Different photographs and videos showing the condition of oral cancer will be shown. Yes, आपने देखा रहेगा मूवी के हर मूवीज के स्टार्टिंग में एक ऐड आता है गुटखा सेवन और तंबाकू का। Yes, to this child to persuade him, so that persuade मतलब convince करना है उसको कि वो please गुटखे से क्या रहे, दूर रहे। This addiction has to be removed, so help of his parents will be taken. They will be told about the child's habit and asked to help him free from his addiction. All right, इतना clear हो गया आपको? That's it. Second question भी है यहाँ पर, your friend has developed the hobby of snapping selfies. Now since your friend has developed the hobby of snapping selfies, which must be common amongst you guys also, right champions? So what would you say? आपके फ्रेंड को अगर स्नैपिंग सेल्फीज का शॉट है तो आप क्या करोगे? पीछे से पाउड बनाओगे जाके या उसको बोलोगे ये वाला फिल्टर डाल? नो ना, या तो मुझे स्नैप पे फॉलो कर या तो मेरे को टैग कर। Would you just say like that? No. Instead you will try to give up a suggestion. The habit of continuously taking selfies is very bad. Yes or no? Yes. Very bad का synonym क्या आएगा? Worst. It shows that the friend is constantly thinking of self. Yes or no? Himself or herself. Of himself or herself. His self-centeredness or selfishness is to be removed by counseling him. He should be diverted and also be motivated to take some other task. Yes? Very simple. He should be made to understand that taking selfie cannot be a hobby but a bad habit which may lead you into a danger at public places. Yes or no? Public places समझ लो, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे उसने ले लिया सेल्फी और पीछे से ट्रेन आ रही है, सेल्फी में दूर दिख रही है। Yes or no? बट नजदीक आके एकदम चिपका के आपको भी लेके चल जाएगी, फिर आप ऐसा चिपक जाओगे कि दीवार के ऊपर ही लटके रह जाओगे। Yes or no? So that should not happen. The third is your sister has become incommunicative. She prefers to remain alone. Yes or no? Sister has become what? Incommunicative. The individual who prefers to be incommunicative has lots of thoughts in his or her mind. जो बात नहीं करना चाहता है इंसान, जो अपने आप को एक कोने में बसा लेता है, जो अपने आप को अकेला समझता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। Yes or no? उसके लिए कभी भी अपने आप को फ्री रखने का नहीं, किसी ना किसी बहाने से बिजी रखने का कोई काम। जब भी आप अकेले भी रहो तो अपने आप के साथ में कुछ ऐसे काम रखो जिसके थ्रू आप बिजी हो, या एक ऐसा कमिटी बनाओ अपने फ्रेंड्स का या तो अपने फैमिली मेंबर्स का जिसके अंदर आप अपने आप को ग्रेजुअली क्या कर रहे हो, वेरी गुड, आउटवर्क कर रहे हो, मतलब अपने आप को एक्सपांड कर रहे हो नॉलेज के थ्रू या अपने वर्क के थ्रू या स्किल्स के थ्रू। ऑलराइट, तो यहाँ पर आई विल टॉक टू हर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर हर अलोफनेस एंड स्ट्रेस. I will also help her to find a solution to her problem.
Yes, I will see to it that she is not left alone. मैं देखूंगा कि वो बेचारी अकेली कभी बैठे नहीं. I will try to make her speak with her family members. वो अकेले बैठे रहेगी तो मैं थप्पा करके उसको जाके बोल दूंगा मैंने देखो ढूंढ लिया, और जाके मैं उसको बोलूंगा कि मेरे फैमिली मेंबर्स वाले से बात करो, आ जाओ मुझसे बात करो, yes or no? And participate in family discussion, family function, etc. This can help her divert her mind from the issues troubling her. I will encourage to pursue a hobby, to pursue her hobby. If nothing changes her, then the help of counselor shall be taken. Yes or no? अगर उसको कुछ भी चीज सुधारनी नहीं है तो फिर तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा? काउंसलर के पास जाना पड़ेगा. Yes or no? उसको सुधार लाने के लिए उसके अंदर. Was that an easy answer? Yes. I hope that आप इसको अच्छे से क्या करोगे. ये 3-4 क्वेश्चंस जो है जो टेक्सचुअल पूछे गए हैं, ये क्या कौन सा पेज खुल गया बाबा? हाँ, डरावना पेज है ये, दिखना नहीं चाहिए वापस से. यादें पुरानी थी, ताजा हो गई फिर से. Oh Lord. What precautions are necessary for proper decomposition of domestic waste? Yes or no? यहाँ पर ये क्वेश्चन है proper decomposition of domestic waste. तो यहाँ पर इसको किस तरीके से आप लिखोगे, कौन से precautions necessary है? Domestic waste मतलब घरेलू कचरा. घरेलू कचरे को सबसे पहले आप सेग्रीगेट करोगे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के अंदर. ऑलराइट, क्या करोगे आप वेस्ट को? सेग्रीगेट मतलब क्या? अलग अलग करना. ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट. कभी कभी घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी निकलता है, तो क्या आप उसको कचरे के डब्बे में डाल के फेंक दोगे? जैसे कि पुराना मोबाइल है, नो. उसको आप बोलोगे रेडियो एक्टिव वेस्ट. क्या बोलोगे? इसके बदले आपको क्या करना है? वी कैन सेल दैट प्रोडक्ट. यस और नो? सेल दैट प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल. यस. और वी कैन उसको हम लोग वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग ऑक्शन कर सकते हैं उस चीज का. तो उन्होंने देखा है पुरानी चीजों का ऑक्शन होता है जो आप घर के बाहर निकालना चाहते हो, और कोई लोग ले लेते हैं उसको. यस और नो? एंड यहाँ पर एक पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ. तो डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट इज ड्राई वेस्ट. After segregation, the waste should be stored separately into 2 different containers. Yes or no? गीले कचरे का डब्बा अलग रहना चाहिए जिसमें आपके गीले कचरे आएंगे, जैसे कि समझ लो कि छिलटे है, कोई वेजिटेबल का पीलिंग है, या कोई फ्रूट पीलिंग है, या सैनिटरी पैड्स है, या कुछ अलग है, तो वो ड्राई किस में आएगा? वेट वेस्ट में आ जाएगा. ड्राई वेस्ट में आपको पता है जो सूखा कचरा रहता है आपका, वो उसमें आ जाएगा. ऑलराइट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, थर्मोकोल शुड बी सेपरेटेड सिंस इट में कंटेन हजार्डस केमिकल. प्लास्टिक और थर्मोकोल को भी अलग से रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो डेंजरस है. यस और नो? Can kill the useful microbes and hamper the process of decomposition. Optimum moisture content should be maintained in the garbage pile in order to ensure faster decomposition of waste. Yes or no? अच्छे तरीके से कचरे को रखना चाहिए, उसमें से बास नहीं आना चाहिए. और अगर आपने सही तरीके से उसको सेग्रीगेट किया और डंप किया तो फटाफट क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा. प्लास्टिक विस्टिक रखेंगे तो डिकम्पोज होने के लिए बहुत टाइम लगाएगा, और आपका वो जो सेग्रीगेशन प्रोसेस है वो पूरा टोटली फेलियर हो जाएगा. यस और नो? नेक्स्ट वी हैव एरेशन बेस्ड मिक्सिंग शुड बी परफॉर्म्ड टू प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर एरोबिक माइक्रोब्स इन द गार्बेज पाइल एंड प्रिवेंट जनरेशन ऑफ फाउल ऑर्डर. यस और नो? आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका जो कचरे का डब्बा है उसको ऐसे जगह पे रखना चाहिए, और कचरे को इस तरीके से इस जगह पे डंप करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा बास छूटे नहीं. और वहां पे जहाँ पे आप कचरे को डब्बे को डंप कर रहे हो वहां पर माइक्रोबियल एरिया सराउंडिंग रहना चाहिए, मतलब नीचे मट्टी रहना चाहिए, डिकम्पोज होने के लिए जगह रहनी चाहिए. यस और नो? आप ऐसा सीमेंट की लादी पे फेंक दोगे तो कभी कभी होगा क्या? वो माइक्रोब उसको डिकम्पोज कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल जब तक उनकी कॉलोनी नहीं बनेगी तो वो होगा नहीं. Am I clear till here? Next that we have is observe the following diagram, write the answer of the following question. What is this diagram of cockroach? What is this? Head. ये दो ऐसे लंबे लंबे क्या आ रहे हैं? एंटीना. What are these 6 legs? What is this? Wings. Abdomen. ये क्या है? Thorax. To which phylum does the animal in the diagram belong to? Arthropoda. What is the exoskeleton made up of? Arthropoda. Yes or no? Next, what is the exoskeleton made up of? Chitin and chitinous.
What is the symmetry? Bilateral symmetry. Bilateral कर ले एवढा spelling पता है ना सबकी? Yes. Then we move on to the very next question that explain the following concept in short. Surrogacy, IVF and sperm bank. Surrogacy के बारे में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर. Surrogacy in women if there is problem regarding the implantation of embryo in uterus, then help of another woman is taken. This woman is called surrogate mother. Yes or no? अगर woman को कोई problem है बच्चे को deliver करने के time पे eggs are not getting fertilized or some other problems. Yes or no? तो यहाँ पर एक दूसरे औरत की मदद ली जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाड़े की कोख. Yes, surrogacy. Oocyte from real mother is taken out and fertilized with sperm collected from her husband. These gametes are fertilized outside in a test tube and then the fertilized zygote is implanted in the surrogate mother. Yes or no? oocyte लिया जाता है मम्मी के अंदर से, डैडी के से थ्रू sperm लिया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर वो surrogate mother उसके अंदर डाला जाता है जिसके थ्रू बच्चा बाहर आता है. इतना क्लियर हो गया. इसको आपने कौन से पिक्चर में देख सकते हो इसको सरोगेसी के बारे में? मिमी पिक्चर. वेरी गुड. कृति सनोन की मिमी पिक्चर में आपको ये मिल जाएगा सरोगेसी. देन एनीबडी एल्स हु कैन हेल्प मी विद IVF? वेरी गुड. IVF is done when there are problems like less sperm count or obstacles in oviduct. Yes or no? मेल और फीमेल दोनों में प्रॉब्लम रहेगी तो IVF technique can be done. In IVF, fertilization is done in the test tube. The embryo formed is implanted in the uterus of a woman for further growth. Yes or no? एम्ब्रायो जो फॉर्म होगा टेस्ट ट्यूब के बाद में इट विल बी इम्प्लांटेड इन द यूटरस ऑफ द वुमेन. यस और नो? तब जाके वो बच्चा पूरा अंदर 9 months के अंदर डेवलप हो पाएगा एंड वो बहुत ले पाएगा. यस. द नेक्स्ट वी हैव अ स्पर्म बैंक. व्हाइल टॉकिंग अबाउट स्पर्म बैंक यू शुड रेफर व्हिच मूवी? विकी डोनर. यस. एंड IVF के लिए आपको पता है ये कौन सा मूवी है इन विच देयर इज दिस कियारा अडवाणी एंड दैट पंजाबी Good news of Akshay Kumar. Exactly. Sperm bank. If man has problem with the sperm production, then the sperm are collected from the sperm bank. Sperm is the place where the donors donate the sperm and such sperms are kept stored. Yes or no? जहाँ पर ये मुझे ऐसा लगता ही नहीं आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. It's so weird. The donor's identity is kept secret and he should also be physically and medically fit person. Alright. यहाँ पर डोनर की आइडेंटिटी जो है ये गुप्त रखी जाती है. किसने स्पर्म डोनेट करके गया वो कोई किसी को पता नहीं है. और वो जो इंसान स्पर्म डोनेट कर रहा है वो फिजिकली भी सही इंसान रहना चाहिए और मेंटली भी सही इंसान रहना चाहिए. मेडिकली ऑलराइट, मेडिकली फिट रहना चाहिए. एम आई क्लियर टिल हियर? Now when we come on to this diagram, label the body organization of human being as shown in the following figure. What is this? Mouth. Spelling of mouth is? What is this? HEAR. What is this? Pakka, it's kidney. This is liver, right? I'm not sure of this kidney or not. Yes, check karo jaldi se. This is thighs. This is liver. Lungs. Come on, did you check it? Yeah, it's kidney, right? KIDNEY, kidney. Alright, when we move on further, we have got this book, this page. Make a table based on the energy and corresponding devices. Electric. ये कहाँ से आ गया भाई? साइंस वन का पेपर तो हो गया. अच्छा, 5th chapter. Alright, solar cooker, solar heater तो solar energy रहेगा. Yes or no? थर्मल का रहेगा तो थर्मल पावर प्लांट. थर्मल और इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या क्या चलता है? फैन, बल्ब, लाइट. यस और नो? रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा. पेपर घर पे लेके जाना अगर ये क्वेश्चन आएगा घर पे जाके नोट करके लेके आना क्या क्या मेरे घर पे चलता है. चार्जर, केबल, टीवी, हेयर मशीन, हेयर ड्रायर. ओह गॉश, दिस स्टूपिड वुमन ऑन सेंचुरी. एग्जाम में लिख के नहीं आई साइंस वन के. हाँ, एंड यू आर क्राइंग लाइक अ बेबी. Spilling of petroleum oil occurs in ocean due to various reasons.
This oil may prove fatal and toxic to dash organisms. To which organisms? यहाँ से आपको देखना है. Aquatic organism. Yes or no? Number 1. It is not easy to remove the oil layer from the surface of water by dash method. Which method? Mechanical method, rhizobium method, toxic method, CO2, nitrogen. तो यहाँ पर अपना डेफिनेटली मैकेनिकल है. यस और नो? ऐसा दिमाग लगाने का जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो. देन अरे ये किधर गया अपन? यस. हाउएवर बैक्टीरिया लाइक डैश SPP, तो Pseudomonas SPP and alkanoids performances have the ability to destroy the pyridines and other chemicals. Hence this dash are used to clear oil spill. Hence this rhizobium bacteria. Yes or no? Next. Hence this bacteria used to clear the oil spill. These are called as hydrocarbonoclastic bacteria. HCB decomposes the dash, decomposes the, yes, and bring about a reaction of carbon with oxygen. Dash and water is formed in this process. Where is CO2? Yes. 6th. Yes or no? 3 marks के लिए कितना easy question पूछा गया था आपको? आपको सिर्फ आँख खोल के सही आंसर लिखने का है. Alright. We move on to the next question. Attempt the various level and perform for conserving environment. Which role should you perform? Give to action of each. आपको पता है ये 4th चैप्टर में एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का आपको यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है कि एक्शंस बताओ, आप क्या एक्शंस लोगे. तो here you need to explain the actions of each one of them and how many actions you're supposed to explain? 2 actions. देखो ये मैंने एक्टिविटी आपको ऑलरेडी बोला था कर रहे हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. चलिए देखते हैं. सबसे पहला उन्होंने क्या पूछा है हम लोग को. सबसे फर्स्ट दे हैव आस्क्ड इज प्रिवेंशन. तो यहाँ पे प्रिवेंशन का क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंट पॉसिबल हार्म्स, डिजाइन न्यू प्लान्स. So how will you write down this thing? Prevention में you write down cars are constantly driven all over the world and are major contributor to pollution. Keep your vehicle in top shape to cut back on the carbon that it releases into the atmosphere. Yes or no? आपको कार्बन को क्या करना है? डेफिनेटली क्या करना है? रिड्यूस करना है. आप पब्लिक व्हीकल्स को यूज करो, प्राइवेट व्हीकल्स को क्या कर दो? हटा दो. पावड़े काका को क्या करो? गोली मारो, रेखा मौसी के जैसा बनो. याद है कि नहीं याद है? क्या वो भी दर्द, वो भी घाव आपका भर गया था, मैंने उसको खोद के करोड़ के वो कर दिया, जवान कर दिया. प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड एयर. दैट्स इट. अंडरस्टूड और नॉट? यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रिवेंट करना है कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ना लैंड, ना वाटर, ना एयर पॉल्यूशन. ये आपने लिख दिया. नेक्स्ट वी हैव इज कंट्रोल. Control में what you are supposed to do? Control preventing the harm and stop the harmful activity. Third is to change the mindset. If you can avoid using plastic water bottles and paper so often, anything you do use that it can be recyclable, be sure to dispose of it properly. Yes or no? आप जो भी चीज यूज कर रहे हो आपको उसको क्या करना है? डिस्पोज करना है. जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर गाँव जाते होगे तो आप पानी लेते होगे. यस और नो? तो आपको अगर ऐसा बॉटल मिलता है ना, तो बॉटल को ना उसके अंदर ये जो ढक्कन को है ना ऐसा प्रेस करने का और इसमें ऐसा डाल देने का. क्योंकि मेरे वांदे हो जाएगा इसके लिए मैं निकाल दे रहा हूँ. बट ये बात ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी ये बॉटल जो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी है उसको रीयूज ना करे, तो आपको ये चीज करना है. एम आई क्लियर? बॉटल के अंदर ढक्कन डालने के बाद में कोई उसको निकाल ही नहीं सकता है. कंजर्व वाटर. वॉश योर क्लोथ्स एंड डिशेस ओनली आफ्टर यू हैव फुल लोड. Save water by turning off the faucet, taking shorter showers and make use of nature's water by collecting rainwater to water your lawn. Yes or no? आप पानी को जमा करके अपने आंगन बगीचे में क्या कर सकते हो? पानी डाल सकते हो. देखा रहेगा ना तुम लोगों ने बड़े बड़े जब गाँव में जाते हो तुम लोग जैसे बड़े बड़े बंगलों के बाहर बावड़ी बनी रहती है, वो बावड़ी के पानी को लोग यूज करते हैं. Yes or no? तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो आपने पानी जमा किया है रेन वाटर, उसको ही आप क्या कर रहे हो? यूटिलाइज कर रहे हो. क्या करने के लिए? उसको स्प्रिंकल करने के लिए. Then we have the very next thing, production. Now for production, what you going to be writing down? Learn to recycle. There are so many craft ways to reuse the thing. To reuse the things. You already have research to learn new projects. 5 minutes craft देखा रहेगा तुम लोगों ने.
यस और नो, बैकयार्ड साइंस करके भी एक है। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग क्या क्या करते हैं, यूसेज बताते हैं, जो भी आपका ऑलरेडी यूज प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से आप री इन्वेंट कर सकते हो। चेंज द वे यू क्लीन द हाउस, यूज सस्टेनेबली मोड आइटम्स एंड ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट आरंट मेड विद डेंजरस केमिकल्स। इट इज बेटर फॉर योर हेल्थ, doesn't pollute the air and it is less harsh on personal items. Yes or no? कि आप घर में भी कोई चीज को ऐसा कर रहे हो जिससे आप घर साफ सफाई करेंगे, कोई चीज लेके आ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली उसको नॉर्मली घर के आइटम्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, चीजों को साफ कर सकते हो। अभी हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लाइजॉल थिंग एंड दिस mop, which cleaner is that blue color water it has? कॉलिन ना, राइट? तो कॉलिन का आप अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं, इफ यू वांट टू जस्ट क्लीन रेफ्रिजरेटर डोर और सम अदर थिंग, यू कैन यूज लेमन का जो एसिड है वो इतना इंस्टेंटली क्लीन करता है। आपको पता है ना, टार्टरिक एसिड वाला क्वेश्चन भी आपको आया था, व्हाई शुड यू यूज दैट, बिकॉज दैट कैन इजीली क्लीन इट एंड आपका पैसा भी बच जाएगा। बाइंग अ लेमन एंड बाइंग अ फुल बॉटल ऑफ कॉलिन इज वे डिफरेंट। यस और नो? फर्क तो वही होने वाला है जो आपको कॉलिन से भी मिलने वाला है और नींबू से भी मिलने वाला है। फर्क आपका ऐसा होना है कि you will end up saving a lot of money, or lots of money. All right, then we have this thing called awareness. When we talk about awareness, we have got 5 points here: education, guidance, awareness, imitation, organization, and participation. How would you use it? Here, when we talk about awareness, if an item isn't used, that doesn't mean that isn't requiring electricity while plugged up. When an item is unplugged, it's not using any power at all. This saves more energy for future use while being cost effective. Yes or no? अगर आप कोई आइटम को यूज नहीं कर रहे हो, जैसे कि टीवी है, आपने रिमोट से उसको स्विच ऑफ कर दिया, yes or no, टर्न ऑफ कर दिया, तो आपको ये बात भी इंश्योर करना है कि आप उसका प्लग भी क्या कर रहे हो, टर्न ऑफ कर रहे हो। yes or no? इतना अवेयरनेस रहना चाहिए ना। yes, then we move on to the next thing: be kind to others, donate things that you do not use anymore instead of throwing them away. You avoid trashing valuable items. yes or no? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी बुक्स है, आप उसको भंगार वाले को नहीं बेचने का, किसी और को दे दो, जो डेफिनेटली क्या करने वाला है, उसको रीयूज करेगा। yes or no? भंगार वाला भी उसको वो उसके दुकान पे रख के ऐसा शोपीस में सजा के वो उसको भी बेचने वाला है ईच हाफ प्राइस में। So why do not you do a charity of just selling it to of just donating it to someone who is a genuine need? Yes or no? Maybe at some point of time he can bless you for that kind work. And what all do you need at the end? The blessings, right? Here we end up learning this whole answer. Conservation में what points can you include over here? In conservation we have got conserve the available resources. Reduce, reuse and recycle method should be kindly used to conserve the natural resources, which is a need of an hour. All right, then we got this question called what is biotechnology? What is biotechnology? Yes or no? अब biotechnology का आंसर जो है इधर पे आपको पता है कि biotechnology आपने पढ़ा है, कौन से चैप्टर से पढ़ा हुआ है? 8th chapter. Yes, 8th or 7th? The technique of bringing about improvements in living organism by genetic modification and hybridization for the welfare of the human being is called biotechnology. Yes or no? अगर आप कोई भी टेक्निक के थ्रू इम्प्रूवमेंट ला रहे हो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, yes or no, बाय मॉडिफिकेशन या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे आप? बायोटेक्नोलॉजी। Give one use of biotechnology. Biotechnology is used in cytology, molecular biology, genetic engineering, biochemistry, agriculture, vaccination. अलग-अलग जगह पे क्या होती है? Biotechnology is used. Give one commercial use. Commercial use मतलब जिससे पैसा कमाया जा सकता है। Biotechnology has application in 4 major industrial areas, including health. Health में vaccination बना रही है। Medical, crop production में पता है ना, cross cropping हो रहा है, yes or no? And agricultural, non-food industrial use of crops and other products, example biodegradable plastics, vegetables, biofuels and environmental uses. Right to bacteria, example of what? Fertilizers. Bacterial example क्या है? Rhizobium, yes or no? Azotobacter. Now what all these bad words have been written over here? I can't read it. Yeah, like seriously. Rhizobium inculent is used for leguminous crops such as pulses. Okay, this went as a bouncer above my head.
Azotobacter can be used with crop like wheat, maize, mustard, cotton, potato, and other vegetable crops. I seriously don't know the uses of it. Champion, please comment and let me know what are the uses of these two things. Explain me. Write the two names of crops genetically developed. दो नाम बताओ crops के जो genetically developed हुए हैं. सबसे पहला तो है BT cotton, दूसरा है golden rice, तीसरा है BT brinjal. Alright, that was enough of the discussion that we did on the paper of Science 2 year 2020. And now I hope कि आपको ये पूरा paper solve समझ में आया रहेगा solution. And all the best until we meet. All the very best. Subscribe करना, channel को comment करना, नई वीडियो को comment करना, and वीडियो को please like करना. Thank you very much.